Hello guys, I welcome you all in our Gurmantra Academy. I'm your educator Saranya, and from today onwards, we are going to start a new chapter. It's molecular biology. Okay, so we are going to start molecular biology. So I hope you guys remember, like maybe some 2-3 weeks ago, I shared a book, that is GRE book, which will have biochemistry, molecular biology, and cell biology plus genetics. It also has genetics. Okay, so it has MCQs on all of these topics. Okay, it has MCQs, that too detailed MCQs. Okay, बहुत डिटेल में आपको MCQs मिल जाएंगे. So आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए. डेली 20 क्वेश्चंस. ओके, डेली 20 क्वेश्चंस बहुत काफ़ी है आपको अच्छे रैंक्स दिलाने के लिए. ओके, यू कैन फॉलो इट एज अ गुड एडवाइस. ठीक है, सो आज हम शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. आई होप यू गाइज आर रेडी. सीट बेल्ट वगैरह डाल लीजिए, हम अपना जर्नी शुरू करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट when we talk about molecular biology, let's understand few important terms. Okay, genetic material in a cell, मतलब एक सेल में क्या genetic material present है. So all cells have the capacity to give rise to a new cell, and that is called as replication. Okay, that is called as replication. And the encoded information in a living cell is passed from one generation to another generation. That is called as inheritance. ठीक है, inherit हो रहा है. The information encoding material is the genetic or hereditary material of the cell. Genome. जीनोम में सारी इंफॉर्मेशन होती है एक सेल की रेप्लिकेशन प्लस उसकी सर्वाइवल के लिए. ओके, so this is what a genetic material means. Then what does a prokaryotic genetic material? Prokaryotes में genetic material कैसा होता है? The prokaryotic genetic material is usually concentrated and it will be present in the cytoplasm itself. Well defined nucleus नहीं होता. Okay, prokaryotes they don't have well defined nucleus. So their genetic material will be present in cytoplasm and that is called as nucleoid. Okay, उसे nucleoid कहा जाता है. The bacterial chromosome is a single, circular, double-stranded DNA. Single होता है, circular होता है, double-stranded DNA है. Okay, and it will be present. Okay, it will be actually attached to the plasma membrane at some point. Okay, at some point of time it will be attached to the plasma membrane also. So it does not contain any histone proteins. इसमें histone proteins नहीं होती. Histone proteins की जरूरत क्या है DNA में? ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट वजह से जानना है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं. कॉइल्ड फॉर्म में जब डीएनए जाता है, इसको इस फॉर्म में मेंटेन करने के लिए आपके पास होना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन्स. ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे डीएनए में जो कि स्टेबलाइज करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर को. ओके, सो बिसाइड्स दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में जीनोम तो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस along with that, along with the chromosomal DNA, they will have extra chromosomal DNA also, extra chromosomal genetic material also they will have, and that is called as plasmid. Okay, that is called as plasmid. Okay, that is called as plasmid. Okay, extra chromosomal DNA मतलब क्रोमोसोम से कुछ एक्स्ट्रा, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लास्मिड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्मिड. सो दे जनरली रिमेन फ्लोटेड इन द साइटोप्लाज्म. ये भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं,
एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्मिड. इफ यू टॉक अबाउट, यू हैव फर्टिलिटी प्लास्मिड जो कि रिप्रोडक्शन पार्ट में यूज होता है, रेसिस्टेंस प्लास्मिड जिसमें होता है जैसे कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन वैसे प्रेजेंट होते हैं. विरुलेंट प्लास्मिड जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं. मेटाबॉलिक प्लास्मिड्स जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनने के लिए जीन्स होते हैं. कैसा होता है ये आपका डीएनए? कैन यू सी, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल and this is the genomic DNA. Okay, this is the genomic DNA and this is the circular extracircular chromosomal DNA. Okay, I mean this is chromosomal DNA and this is extra chromosomal plasmid DNA. Okay, ये plasmid DNA है और ये chromosomal DNA है. Okay, so can you see in this picture, can you see, this is a very beautiful picture that will explain you. आप यहाँ देख सकते हैं, this is a bacterial cell. Okay, it is a bacterial cell. इसमें this is the chromosomal DNA which has been spread. It is not completely compactly packed. It has been spread. पूरी तरह से spread हो चुका है DNA binding proteins हैं और at some point of time देख रहे हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी ये interact करता है. Okay, so this is the bacterial cell. This is the chromosomal DNA. This is plasmid DNA and this is your your prokaryotic cell. और टेम इमेज ऑफ द प्लास्मिड डीएनए, प्लास्मिड डीएनए का जो टेम इमेज दिया गया था वो इस तरह दिखता है कुछ. ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके ओके, सो नेक्स्ट इज वायरस का जेनेटिक मटेरियल. वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है. उसके मतलब वायरस के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है. एंड हाउ इज इट प्रेजेंट एंड वेयर इज इट प्रेजेंट? मान लो ये है आपका वायरस. ओके, ये है आपका वायरस, ये है प्रोटीन कोट, आउटर कोट प्रोटीन कोट. इसके अंदर एक इनर प्रोटीन कोट होता है एंड उसके बीच में होता है जेनेटिक मटेरियल. इट विल बी कंप्लीटली पैक्ड इनसाइड द वायरस पार्टिकल. ओके, नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल. जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, दे आर द ऑर्गेनिज्म. ओके, दे आर द एक्सटेंडेड ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन हुई थी. ओके, सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है और एक स्पेशलिटी ये है कि यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल. आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें. और इस न्यूक्लियस में मान लो ये है आपका सेल, तो उसके बीच में उसका मास्टरमाइंड क्या होता है? न्यूक्लियस. और उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स की प्रेजेंस होती है और इसमें से जीन्स होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल का बेसिक यूनिट. जीन इज द बेसिक यूनिट होता है विच इज प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम. दिस इज योर क्रोमोसोम एंड यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे जीन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड दे एग्जिस्ट एज अ क्रोमैटिन. ओके, क्रोमैटिन की तरह, मतलब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमैटिन, मतलब विदाउट एनी शेप इट विल बी प्रेजेंट व्हेन देयर इज नो डिवीजन. बट व्हेन cell division is happening, chromatin will condense to form chromosome. ये chromosome structure है. Okay, this is chromosome structure and this is chromatin structure. Okay, इतना तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, टाइटली कॉइल्ड डीएनए. ठीक है, दे आर वेरी टाइटली कॉइल्ड डीएनए अराउंड द बेसिक हिस्टोन. मतलब यहां से आप यहां देख सकते हैं कंप्लीटली स्कैटर्ड स्ट्रक्चर है. यहां से इतनी अच्छी वाली पैकिंग कैसे कहां से आती है? और ये पैकिंग करने के लिए हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन्स. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, so histone proteins have to be positively charged. Only then they will be bound tightly with each other. Okay, they will be bound tightly with each other. So याद रख लीजिएगा, DNA is always negatively charged because of the phosphate group and histone proteins are positively charged because it will have positively charged amino acids. And what are the positively charged amino acids? You have arginine, you have histidine, you have lysine. ये सब present होते हैं histone proteins में and that will help in tight packaging of the DNA. So during interphase जब cell division होने का शुरू होता है,
ओके, सो द डीएनए इज नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, ओके, पहले से तो डेफिनेटली टाइटली पैक्ड नहीं है, बट उसके बाद क्या होता है, दे अंडर आई मीन इट इज नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, दे एग्जिस्ट लाइक अ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में इट विल बी एग्जिस्टिंग. जब इट हैज टू form the cell division, it has to undergo replication, then all of this chromatin material will be condensing with each other to form chromosome. condensation होता है और chromosome बन जाता है, chromosome structure, और उसमें बहुत सारे genes आप देख सकते हैं. ओके, कैन यू सी हियर, दिस इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और यहाँ बहुत सारे कलरफुल लाइंस दिए हुए हैं. कैन यू सी, लाइट ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, ये कलरफुल लाइंस को हम जीन्स करके कहते हैं. एंड दिस इज द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ये जो क्रोमोसोम के सेंटर में है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर क्या करता है, ड्यूरिंग सेल डिविजन ये दो क्रोमोसोम्स है ना, आई मीन दो पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज पी, दिस इज कॉल्ड एज क्यू. इस पार्ट्स की सेपरेशन के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, यूजुअली क्रोमोसोम्स विल बी डिप्लॉयड इन कंडीशंस ऐसे. सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हाट विल हैपन, सेंट्रोमियर में ब्रेकिंग होती है ऐसे, या तो ऐसे ब्रेकिंग हो सकती है या फिर ऐसे ब्रेकिंग हो सकती है. यूजुअली दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज द कॉमन वन, ये वाला. Okay, so this is one set of chromosome, this is another set of chromosome, and this is यहाँ जो structure दिखाया है that is diploid. Okay, that is diploid in nature, and these two are called as sister chromatids. These two are called as sister chromatids. This is P arm, this is Q arm. Okay. सो द क्रोमोसोम नंबर, अभी हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में देखा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर का मतलब क्या है, एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, स्पेशली हैप्लॉइड सेल में. ओके, सो ह्यूमंस की बात हम करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे इन हैप्लॉइड सेल. ओके, हैप्लॉइड सेल n नंबर ऑफ, ओके, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है एंड दैट इज 23. डिप्लॉयड में क्या होता है, डिप्लॉयड में 2n होता है एंड दैट इज योर 46 क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड कंडीशन. ओके, सो हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं एंड डिप्लॉयड सेट को हम एक जाइगोट करके कह सकते हैं. उसमें दो, एक सेट फादर से आता है और दूसरा सेट मदर से आता है. ओके, यूजुअली यूकैरियोट्स में अदर देन न्यूक्लियर क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है. यहाँ प्लाज्मिड डीएनए नहीं होता, उसके बजाय माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है प्लस क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के पास होता है. ओके, सो द लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन नेमेटोड एस्कैरिस, जिसके पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स है. ओके, दैट इज टू बी नोटेड, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके, सो कैन यू सी इन दिस टेबल देयर इज ऑर्गेनिज्म एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, अराबिडोप्सिस थालियाना, ये सब डिप्लॉयड फॉर्म में बताया गया है. ओके, अराबिडोप्सिस थालियाना के पास कितना है क्रोमोसोम्स, 10 क्रोमोसोम्स है. मेज के पास 20, व्हीट 42, कॉमन फ्रूट फ्लाई 8, अर्थवर्म 36, देन माउस 40, ह्यूमन 46, elephants 56, donkey 62, dogs 78, goldfish 100 to 104 chromosomes, tobacco plant 48 and oats is 42. इसमें टोबैको इज अ टेट्रालॉइड, टेट्रालॉइड मतलब 4n. ओके, एंड ओट्स इज अ हेक्साप्लॉइड, सिमिलरली हेक्सा मतलब 6n. सो अभी जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें, देयर इज ऑल्सो अ डिवीजन इन क्रोमोसोम, दैट इज ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे हर बॉडी सेल में प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट होता है. सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो कि अदर देन दोस 44 आई मीन 22 क्रोमोसोम्स. यूजुअली ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं. ओके, जो कि सेल बॉडी डिवीजन के लिए हेल्प करते हैं.
वन सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में। ओके, वन सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो वो एक्स हो सकता है या तो फिर वो वाई हो सकता है। ओके, सो हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन को ही लिया जाता है। सो 44 ऑटोसोम प्लस, अगर फीमेल है तो XX या फिर मेल है तो XY क्रोमोसोम। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? अनफोल्डेड, मतलब जो कि लूज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है। Okay, so DNA, what is DNA? DNA is the chemical component of the protein. Okay, DNA is the chemical component of the protein. ये हर जीनोम में प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड हो डिप्लॉइड हो, प्रेजेंट होता है। ओके, यूजुअली हम डीएनए की अमाउंट को पिकोग्राम्स में मेजर करते हैं इन ए हैप्लॉइड सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। ओके, सो द अमाउंट ऑफ डीएनए पर हैप्लॉइड सेल, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल में अगर हम देखेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, जो कि हम यूजुअली पिकोग्राम्स या फिर नंबर ऑफ किलो बेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सेल्स ऑफ अ स्पीशीज। एक स्पीशीज के लिए सी वैल्यू विल बी कांस्टेंट। अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें हैं, इट विल बी 2C। सो from the C value we can go to C value paradox. Okay, so even though eukaryotic organism appear to have 2 to 10 times as many genes as prokaryotes, they have many orders of magnitude more DNA in the cell, क्योंकि वहां बहुत सारी repetitions होती हैं। Furthermore, the amount of DNA per genome is correlated not with the presumed evolutionary species complexity. Okay, this is stated as C-value paradox, which means amount of DNA that is present in haploid cell, and that is also not related to the evolutionary complexity. जरूरी नहीं है कि वो evolution से complex बना है, ऐसा नहीं होता। हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स के प्रोटीन होते हैं, जिसमें आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडिन प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब हमारी बॉडी के पीएच में इनके पास कैटायन होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ओके, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड के साथ इंटरैक्ट करके एक कंडेंस्ड डेंस कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। हिस्टोन्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। ओके, दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, और इनमें से H1 लिंकर के तरह काम करता है। ओके, जो कि 2 हिस्टोन प्रोटीन्स को लिंक करने में हेल्प करता है, बाकी सब कॉइलिंग में आ जाता है। ओके, और ये बहुत सिमिलर होता है अमंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ यूकैरियोट्स, एंड दिस रीजन इज हाईली कंजर्व्ड। हिस्टोन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज हाईली कंजर्व्ड थ्रू आउट द एवोल्यूशन प्रोसेस। ओके, एंड H1 जो कि सबसे लीस्ट कंजर्व्ड है, बहुत लूजली बाउंड होता है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सैक्रोमाइसिस cerevisiae एंड इट एक्ट्स लाइक अ लिंकर। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो कि हिस्टोन्स के रेंज में नहीं होते, वो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या जीन एक्सप्रेशन के लिए। दोज आर नॉट कंजर्व्ड। Okay, those are not conserved. It can depend upon different species. Species to species वो vary करते हैं, and that is called as non-histone proteins. So the histone proteins, non-histone proteins, and the DNA together it is called as nucleosome. Okay. So can you see here? Can you see here? This is a chromosome. ये है एक सेल, सेल में से हमने एक क्रोमोसोम को निकाला, उसमें मैंने आपको बताया दिस इज पी आर्म, दिस इज क्यू आर्म, सेंट्रोमियर एंड ऑल। ओके, सो ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा सा आप खोल दो, इस सोलिनॉइड स्ट्रक्चर को थोड़ा, मतलब क्रोमैटिड स्ट्रक्चर को थोड़ा खोलोगे तो यू विल गेट सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। सोलिनॉइड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोलोगे तो यू विल गेट न्यूक्लियोसोम, जहां आपके पास होगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, ये प्रेजेंट होगा। उसको और थोड़ा खोलोगे तो यू विल गेट द डीएनए स्ट्रक्चर। ओके, डीएनए स्ट्रक्चर आपको मिलेगा,
फ्रॉम डीएनए, डीएनए में से एक छोटी सी सेगमेंट, ओके, डीएनए, दिस इज फुल डीएनए, ओके, डीएनए में से एक छोटी सी सेगमेंट को जीन्स कहा जाता है और जीन्स के बीच में बेस पेयर्स होते हैं, ओके, सो दिस इज हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, ओके. Okay, now we have to understand a term between eukaryote and euchromatin, heterochromatin. यूकैरियोट्स में यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. यूक्रोमेटिन वो होता है, मतलब ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. इसमें यूक्रोमेटिन वो स्ट्रक्चर होता है जो कि लूजली बाउंड डीएनए को हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, टाइटली बाउंड डीएनए को हेटेरोक्रोमेटिन करके कहते हैं. ओके, दैट दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हेटेरोपाइक्नोसिस, और ये इसमें यूक्रोमेटिन में नहीं होता बट हेटेरोक्रोमेटिन में होता है. डीएनए की डेंसिटी बहुत लो होती है यहाँ, और यहाँ हाई होती है, हाई डेंस, वेरी डेंस, क्योंकि टाइटली पैक्ड. प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में होता है, बट ये सिर्फ होता है यूकैरियोट्स में. ये एक्टिव स्टेट होता है, ये इनएक्टिव. इनएक्टिव मतलब दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन. अर्ली रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है, लेट रेप्लिकेशन. नॉन स्टिकी रीजन होते हैं, स्टिकी रीजन यहाँ होते हैं. इनर बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है. यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होती नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी खासी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है. ओके, ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रोमियर. सो ये जो क्रोमोसोम का सेंटर रीजन है ना, इसको हम सेंट्रोमियर करके कहते हैं. वहां क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर आके, यहाँ काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है जहां स्पिंडल फाइबर आके बाइंड करता है. ओके, सो सेंट्रोसोम्स आर दोज कंडेंस्ड रीजन विद इन द क्रोमोसोम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीगेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बिकॉज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, ये बहुत ज्यादा डार्क स्ट्रेन्ड रीजन होता है in the DNA. टीलोमियर, टीलोमियर इज नथिंग बट द एंड रीजन. एंड रीजन को हम टीलोमियर कहते हैं. क्रोमोसोम की एंडिंग्स को हम टीलोमियर कहते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जीनोम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एंजाइम, न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अननेसेसरीली नहीं होता. यहाँ रिपेयर बहुत ऑफन होता है और इंट्राक्रोमोसोमल फ्यूजन, ये सब यहाँ प्रोटेक्शन की जाती है. क्यों? क्योंकि अगर टीलोमियर हर एक बार रेप्लिकेशन होते समय एक थोड़ा सा पार्ट ऑफ टीलोमियर इज लॉस्ट. ओके, एवरी टाइम रेप्लिकेशन हैपेंस अ स्मॉल पार्ट इज लॉस्ट. जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है देन डीएनए डैमेज कैन इजीली हैपन. ओके, यहाँ क्योंकि प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ नहीं है. हर बार जब रेप्लिकेशन होता है वो प्रोटेक्शन लेयर, एक लेयर वहां से निकल जाता है. सो टीलोमेरेज इज एन एंजाइम. ओके, टीलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, टीलोमियर की इलोंगेशन के लिए हेल्पफुल करता है. एंड टीलोमियर की लेंथ रिडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एजिंग. ओके, सो कैन यू सी हियर, दिस इज human metaphase chromosome that has been showed here by staining methods. So can you see here, this is chromosome number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Similarly, ऐसा सबसे बड़ा क्रोमोसोम, कैन यू सी, इट इज एक्स क्रोमोसोम. सबसे बड़ा क्रोमोसोम इज एक्स क्रोमोसोम एंड सबसे छोटा क्रोमोसोम इज वाई क्रोमोसोम. ओके, okay, types of human chromosomes. There are also types of human chromosome that is depending upon the position of centromere. Centromere की position को base करके हम क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब सारे के सारे, all the 4 chromatids will be equal in length and the centromere will be at the center. सबमेटासेंट्रिक, इसमें इट विल बी लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि ऐसा होता है, लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, इक्वल अनइक्वल लेंस होते हैं, थोड़ा लॉन्गर होता है. ओके, एक साइड थोड़ा लॉन्गर होता है सबमेटासेंट्रिक में. एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक इज closer to one end of the chromatid, therefore the chromatids on opposite sides are very long. ओके, मतलब ये इस तरह होता है, opposite side very long. So this is what is your acrocentric chromosome looks like. Okay, next is telocentric. Telocentric chromosomes में सिर्फ एक ही आर्म होता है.
okay, and this is not usually seen in the human cells. Okay, this is not usually seen in the human cells. Can you see here metacentric chromosome, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में, सबमेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर, नॉट सेंटर। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म छोटा होता है और दूसरा आर्म बहुत बड़ा होता है। टीलोसेंट्रिक में आप देख सकते हैं एक आर्म दिख भी नहीं रहा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नॉट विजिबल एट ऑल, और दूसरी साइड में ही आर्म्स होते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड कि सिर्फ एक साइड में आर्म्स होते हैं इसके। Okay, so next topic we are going to understand is mutations. Mutations के बारे में understand करने वाले। What is mutation? Any kind of change या फिर alteration that happens in a DNA or a gene or a chromosome that can be due to some of the intrinsic factor or extrinsic factor, जैसे कि UV light, exposure, ये सब होते हैं causes of mutation. कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। म्यूटॉन क्या होता है? जीन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट विल बी अंडरगोइंग द म्यूटेशन प्रोसेस। म्यूटेटर जीन वो जीन्स होते हैं जो कि दे आर वेरी वेरी ससेप्टेबल टू म्यूटेशन। म्यूटेबल जीन्स सिमिलरली म्यूटेटर जीन्स जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, म्यूटेबल जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेंट वो होता है जो कि ऑल्टरनेटिव फिनोटाइप दिखाने के लिए शुरू हो जाता है, जैसे कि अलील। म्यूटाजन वो केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट जो कि म्यूटेशन को कॉज करता है। हॉटस्पॉट मतलब वो रीजन्स इन द जीन विच आर हाईली ससेप्टेबल फॉर म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन मतलब जीन्स में सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन मतलब वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड विल बी चेंजिंग। Okay, so classification of mutations, if you see substitution मतलब one base is replaced by another base. For example, ये है आपका double stranded DNA, you have AGCGTAA, इसमें से मान लो कॉम्प्लीमेंट, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री है T, देन CGCATT। ओके, इसमें से मान लो ये वाला चेंज हो गया, T के बजाय वहां C आ गया। Okay, now this is called as a substitution because one is replaced by another base. Okay, deletion में क्या होता है? For example, एक पार्ट ही खत्म हो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है। इंसर्शन में एक नया पार्ट आके इंसर्ट होता है। इन्वर्जन मतलब यहाँ जो AG है उसके बजाय GA बन जाएगा। ओके, GA। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब है from this part of the chromosome it will go and jump into another part of the chromosome, okay, in the non-homologous chromosome, जैसे कि this is one chromosome, this is another chromosome, they are non-homologous chromosome, यहां से यहां शिफ्ट हो जाना is called as translocation। chromosomal rearrangement मतलब यहां से यहां कुछ चला जाना, फिर यहां से फिर यहां कुछ चला जाना, this is called as rearrangement। okay, so usually हम कोडॉन्स कहते हैं, मतलब कोडॉन्स क्या होता है? थ्री बेसेस एक साथ मिलकर एक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोडॉन। ट्रिपलेट इन नेचर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड में U इज नथिंग बट T, ठीक है, UCAG, दिस इज द फर्स्ट लेटर हियर, सेकेंड लेटर हियर, थर्ड लेटर हियर। ये आपको एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जाता है, यू हैव टू रीड दिस। यू में इफ इट्स यू अगर थर्ड लेटर में थोड़ा सा चेंज हो गया तो भी इट इज नो प्रॉब्लम, सेम अमीनो एसिड आएगा, बट द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर हैज टू बी सेम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल UUU is phenylalanine, UUC is also phenylalanine, UUA is leucine, UUG is also leucine। ओके ओके, AUG is methionine, ये तो आपको पता है। GUG क्या होता है? वेलाइन होता है, राइट, GUG वेलाइन होता है। then you have lots and lots of stuff here to go through। okay, stop codons सब कुछ इसमें आ जाता है। stop codons can you see here? UAA, UAG, UGA। okay, so these are the triplet codons जो कि एक अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। so म्यूटेशन की जब हम बात कर रहे हैं, दिस इज द वाइल्ड टाइप mRNA एंड द पॉलीपेप्टाइड मतलब जब ये ट्रांसलेट होके बनता है, व्हाट इज द अमीनो एसिड इट इज प्रोड्यूसिंग? ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड को बनाते हैं।
ओके, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, ऑल्दो ए से सी में चेंज हो गया है, इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग, इट विल स्टिल मेक एलानिन ओनली, दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट म्यूटेशन। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में कुछ चेंज हो जाता है तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, सेम अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन मतलब फर्स्ट पोजीशन में चेंज आ जाता है, फ्रॉम ग्लाइसिन इट हैज चेंज टू आर्जिनिन, मतलब जो जहां होना चाहिए था उसके बजाय कुछ और आ गया, दैट इज मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस मतलब सेंस नहीं हो रहा, यहां आई एम नॉट एबल टू सेंस ग्लाइसिन हियर, समथिंग एल्स इज हियर। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब जहां स्टॉप कोडन आके बीच में घुस जाता है, ओके। सी के बजाय यहाँ यू में चेंजेस आ गए, ओके, सी के बजाय यू आ गया, यू इज अ स्टॉप कोडन, so it will make a truncated protein, it will not make a complete protein, so this type of unwanted proteins जैसे कि nonsense proteins produce होते हैं, that is called as nonsense mutation। frame shift mutation and that is because of insertion, suddenly इस जगह मैंने एक बेस को ऐड कर दिया, जैसे कि सी, जीसीसी, सो फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा है, कैन यू सी हियर, ये ए सी सी एक बन रहा है, देन ए जी जी एक बन रहा है, देन ए यू ए एक बन रहा है, देन ए जी आई मीन ए जी ए एक बन रहा है, देन यू जी जी एक बन रहा है, एंड अगेन वन ए इज एलिमिनेटेड। फ्रेम ही कुछ शिफ्ट हो गया है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, वॉट एवर आई शोन इन दिस प्लेस इज गिवन हियर, ओके। फ्रेम खुद शिफ्ट हो चुका है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंसर्शन। साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस, नॉनसेंस में सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एक मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और आके बैठ रहा है, बट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इंसर्ट हो रहा है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। फ्रेम मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मिससेंस में एक अमीनो एसिड की जो कोडॉन है वो चेंज हो जाता है। नॉनसेंस म्यूटेशन में स्टॉप कोडॉन बीच में आ जाता है। साइलेंट म्यूटेशन में चेंजेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, बट अमीनो एसिड सेम बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में या तो डिलीशन हो सकता है, एक बेस डिलीट हो गया, या फिर एक बेस एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दैट विल लीड टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो बैड चीज में ही जाए, म्यूटेशंस आर मोस्टली रिलेटेड टू कैंसर, ओके, बट कुछ समय म्यूटेशंस आर हेल्पफुल फॉर एवोल्यूशन। sometimes loss of function happens, complete loss of a protein function, या तो complete चला जाएगा या फिर प्रोटीन की जो फंक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। गेन ऑफ फंक्शन, प्रोटीन की फंक्शन वो गेन कर रहा है, या फिर वो वाइल्ड टाइप प्रोटीन की फंक्शन के साथ कुछ इंटरफेयर कर रहा है, या फिर उसका एक नया फंक्शन आ चुका है। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर गेन ऑफ फंक्शन। Okay, so I hope you guys would have enjoyed today's class. This is your first class of molecular biology, जिसमें हमने बहुत सारे basic concepts देखे, okay? बहुत सारे basic concepts about the chromosome organization, everything we have seen. I hope you guys would have enjoyed the class. कोई भी doubt हो तो आप हमें contact कर सकते हैं. Thank you so much guys. Have a nice day.